एक दिवसीय ऑनलाइन माध्यम द्वारा आयोजित एक दिवसीय ऑनलाइन आभासी मंच पर करियर काउंसलिंग यूजी और पीजी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस विषय के मार्गदर्शन हेतु हमें डॉक्टर आभा चौहान, समाजशास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर जी.एस. जाधव सर जी प्राप्त हुए और प्रस्तुत कार्यक्रम के प्रमुख उपस्थिति के रूप में महाविद्यालय के विज्ञान शाखा के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर वी.एस. जिंगले सर, वाणिज्य शाखा के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर असोले सर जी और कला शाखा के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर डी.वी. थोरी जी तथा कला शाखा समन्वयक डॉक्टर डी.बी. ढोगले जी हमें प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए मैं डॉक्टर डी.वी. थोरी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर पडोले सर। This is quite a great opportunity for me to introduce this particular lecture today. First of all, on behalf of Bharat Shikshan Sanstha Sri Chhatrapati Shivaji College, Umarga, which is in Osmanabad district of Maharashtra, I heartily welcome to Honorable Dr. Abha Chauhan ji for accepting our invitation to give a lecture. Now, of course, after COVID-19, it has become, we can say, a simplest thing, ma'am, to be connected by this online platform, because you are there in Jammu and Kashmir. Actually, we cannot imagine you are here with us. I heartily congratulate you on behalf of my college. I was happy while asking to Dr. Padole sir that we are going to organize a lecture, especially a workshop on career counseling for the students of UG and PG of our college. Then suddenly he said there is a very distinguished speaker in Jammu University, especially in the Department of Sociology. I'll call her and I'll tell you within 5 minutes. Ma'am, within 5 minutes, he replied me that you are, of course, were ready for giving a lecture on this particular topic. And this is quite a fortunate opportunity for all of us, and especially to my students and colleagues to listen to you on this Zoom platform. Now, this Bharat Shikshan Sanstha, now the Sanstha is the regional word which is used for the institution. Our Bharat Shikshan Sanstha was established in 1941 before independence by late Tatyaravji More Abba. Because before independence, a very harsh reality of education was there, even though they dared to start this educational institution. In 1959, Dr. Baba Sahib, it was not the very next year, our college, Sri Chhatrapati Shivaji College, was established. And I proudly can mention here, ma'am, that from the very junior college, that is from 11th, 12th, when a student enters in our college, we have a facility to complete the PhD degree in our college, because we have research centers, we have good number of research guides in our college. So day by day, we are progressing. But ma'am, in this particular 21st century, as we are facing last 2 to 3 years, especially this pandemic, students are very much worried about their life, about their educational opportunities in future. So that we were thinking to connect our students to the various regions, various states of India. And this program, today's workshop, we grab this opportunity to make you as a great speaker. And I assure my students that they will get benefited from your lecture. I welcome on behalf of my college, Honorable Dr. Abha Chauhan ji, and I hand over this anchoring to Dr. Padole sir. Thank you very much. धन्यवाद सर जी। आज के प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर आभा चौहान को मैं आमंत्रित करता हूं
कि वो हमें और हमारे यूजी और पीजी स्टूडेंट को मार्गदर्शन करें। हेलो। हाँ मैम। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ यस मैम यस। Namaskar, good morning. Thank you very much, all of you, and thank you, Professor Thore, for introducing me to Bharat Shiksha Sansthan and the activities, its activities, and thank you, Shri Chhatrapati Shivaji College, Umarga, for inviting me. I would like to thank the principal, Dr. Ghanshyam Jadhav ji, Dr. P.G. Patil, the head of the Department of Sociology, the other distinguished guests here, and Professor Dr. Padole, who has been instrumental in inviting me and has been in touch with me throughout, all the distinguished people present here, the teachers and the UG and the PG student. जैसा कि प्रारंभ में कहा गया, मैं हिंदी में ही बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद हिंदी समझे और मराठी उनकी मातृभाषा है, लेकिन वो भाषा हमको नहीं आती है अच्छी तरह से, तो आप लोग शायद इसको बर्दाश्त करें कि मैं हिंदी में ही अपनी बात को बोलूंगी बजाय इंग्लिश के। और जैसे कि कहा गया कि कनेक्टिविटी जो है बहुत संभव हो पाई है, बहुत दूर दराज इलाकों से बहुत लोगों से एक ही समय में हम लोग मिलके बात कर सकते हैं। अभी मैं जम्मू में हूँ इस समय, और आप लोग भी बहुत दूर हैं, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है ये कॉलेज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। मैं प्रारंभ में एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मेरा विषय है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, और जैसा मुझे अंदाजा आया था कि ये एक करियर काउंसलिंग की तरह का एक लेक्चर होगा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि जैसे अब आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं तो वो दूसरे तरह की चीज़ें हम लोग अध्ययन और अध्यापन करते हैं। और दूसरा ये है कि मेरा जितना भी जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो मेरे अपने विषय के साथ ज़्यादा रहेगा, और शायद कुछ समाज विज्ञान के विषय कह सकते हैं, सोशल साइंसेज, द सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज, और बाकी का मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक तो मेरा विषय समाजशास्त्र है, दूसरा मुझे कुछ ऐसा एक तरह से लगा था कि शायद स्टूडेंट सोशियोलॉजी के होंगे, तो अगर और लोग हैं तो जितना भी आप इसको समझ सकें और आपको लगता है कि आपको कुछ इससे लाभ होगा, तो आप वैसा ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जैसे करियर काउंसलिंग की हम ये बात करते हैं, तो करियर काउंसलिंग का मतलब यही है कि सलाह देना किसी विशेष क्षेत्र में, और करियर की बात करते हैं तो विशेष रूप से ये होता है कि आप किस तरह का व्यवसाय, किस तरह का प्रोफेशन, किस तरह का जॉब या ऑक्यूपेशन चुने, तो ये जो चीज होती है उसके बारे में एक तरह से गाइडेंस है, उस तरह के बारे में एक तरह से बताना है। कोई पूर्णिमा है, उनका माइक ऑन है। तो ये कहना चाहूंगी अलग विषय है बहुत से विषयों से, हर विषय की अपनी एक यूनिक सब्जेक्ट मैटर होता है, उनकी मेथोडोलॉजी होती है, उनको पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, विषय वस्तुएं अलग होती हैं, और यही निर्धारित करता है कि वो किस तरह से और किस दिशा में लोग उसको अपनाते हैं। तो विशेष रूप से मैं समाजशास्त्र के बारे में कहूंगी, लेकिन बाकी विषयों के बारे में भी कम से कम सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंसेस के विषयों के बारे में हमें एक ये समझ है जिसको हम कहते हैं फिलॉसफी ऑफ द सब्जेक्ट या फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेस, कि आप अगर ये विषय पढ़ते हैं या चुनते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जहाँ तक सोशियोलॉजी का सवाल है उसमें हम लोग बहुत ज्यादा जोर देते हैं
जिसको फील्ड वर्क कहा जाता है, या जो हम लोग एरिया में जाके स्टडी करते हैं। हालांकि और विषय भी हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, लेकिन जितना फील्ड वर्क पर जोर दिया जाता है, जैसे चाहे आप दुबे का, श्रीनिवास का कोई भी वर्क्स ले लें, गांव पे अध्ययन है, आदिवासियों पे अध्ययन है, तो फील्ड वर्क जो है वो एक तरह से उसका बेस लेबोरेटरी है, अनलाइक द डिसिप्लिन ऑफ साइंस। हालांकि आजकल बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है, लेकिन फिर भी वो विषय ऐसे हैं जो कि लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंट क्रिएट किए जाते हैं। हमारे लिए लेबोरेटरी जो है वो नेचुरल वे में एग्जिस्ट करती है, और वहां जाके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो समाजशास्त्र के विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स या विद्यार्थी हैं और टीचर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, वो उनके अंदर एक मैं ये कहूंगी कि एक जो डाइवर्सिटी है, या जो हमारे देश का अलग अलग तरह का संस्कृति है, कल्चर या धर्म या जातियां या बहुत सारे या भाषाएं, विभिन्न आधार पर जो अंतर है लोगों में, हम लोग कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या यानी कि हमारा एक तरह से एक देश है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो उस विभिन्नताओं के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है या हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे विषय से बढ़ती है कि और वो इसलिए मैं बहुत ज्यादा, जिसको मैं कह रही हूँ कि फिलॉसफी और अंडरस्टैंडिंग अ सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें मतलब जैसे अब करियर काउंसलिंग की बात है तो वो उस पर मैं आऊंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक विषय का क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत आवश्यक है। कि जब हम ये समझते हैं कि हमारे देश में या इवन बाहर की हम बात करें तो विभिन्नताएं बहुत हैं, अंतर बहुत है, लेकिन हमें साथ में ये भी समझना जरूरी है कि इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, इनइक्वालिटी या असमानताएं नहीं है, सबको एक जैसा ही हम लोग माने या ट्रीट करें। ये एक प्लूरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, लोगों का साथ इकट्ठा रहना, जो कि बहुत सदियों से चला आ रहा है, उसकी जरूरत है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जब हम लोगों का अध्ययन करते हैं या रिसर्च करने जाते हैं, हमारे दिमाग में एक कुछ पहले ही कुछ विचार होते हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि भाई गांव के लोग ऐसे होते हैं, आदिवासी तो ऐसे होते हैं, इस समुदाय के लोग ऐसे होते हैं, महिलाएं तो ऐसे होती है। अगर आपको एक तटस्थ रूप से, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अध्ययन करना है, तो आपको इस तरह से यू हैव टू गो विद एन ओपन माइंड। अगर आप बहुत सारे पूर्वाभास से जाएंगे सोच के, तो फिर आपका अध्ययन वहीं पे रुक जाएगा। तो आपको फील्ड में जाना है, लोगों की बातें सुननी है, आपकी सुनानी नहीं है, एंड यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर फॉर दैट। तो ये जो चीजें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहा गया, वो बहुत इन विषयों में बहुत आवश्यकता है कि हर विद्यार्थी के अंदर, हर टीचर के, रिसर्चर के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, कि आप सवाल कर सके, आप मतलब एक एनालाइज कर सके, व्याख्या कर सके, क्वेश्चन कर सके कि जो समाज में हो तो उसको हम अपने दिमाग से सोचे, वो नहीं जो हमें समाज दिखाता है। So every reality is a socially constructed reality and we have to understand and deconstruct that rather, है ना। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमें ये कहा जाता है कि you have to unlearn, जो कुछ आप सीखे हो उसको आप दोबारा से सीखिए, है ना। क्योंकि आप जो सीखे हैं हो सकता है वो डोमिनेंट हो, हायरार्किकल हो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो हमें कायदे से ये बता रही है कि समाज जो है वो समानता वाला समाज नहीं है। तो वो तो चीजें हमें अपने दिमागों से हटानी पड़ेंगी। और ये एक विशेष रूप से मैं कहूंगी कि समाजशास्त्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बताया जाता है, शायद आपको जरूर बताया गया होगा, कि यू शुड नॉट थिंक व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, मतलब हम अपने जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनको एक तरफ रखें। हम एक तटस्थ रूप से, एक ऑब्जेक्टिव रूप से, जो चीज जैसी है, जो डेटा हमारे सामने हमें दिखाता है और कहता है, हम उस पे जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। और ये जो एक सेंसिटिविटी, एक संवेदनशीलता एक आती है, ये आपको एक स्ट्रांग बनाती है, ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, कहीं भी आप अगर जॉब ढूंढने जाएंगे तो। और वो इसीलिए आती है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स शुरू में मैं उनको पढ़ा रही थी फैमिली मैरिज किनशिप, एक बार साइंस के स्टूडेंट्स को, आईआईटी दिल्ली में, तो मैंने उनको ये बताया कि नायर में एक संबंध
प्रक्रिया होती थी, या कहीं कहीं मैट्रिलिनियल सोसाइटीज भी होती थी, माँ के नाम से वंश चलता था। तो दे वर शॉक्ड, उन्होंने कहा कि क्या मैम ऐसा होता है, क्या हमारे देश में होता है? तो मैंने कहा कि कुछ कुछ समाजों में ऐसा होता है, पहले होता था, अब कम होता है, लेकिन अभी भी। ये जिसको हम कहते हैं पॉलीएंड्री, जैसे हिमालयन पॉलीएंड्री, आप देखिए डीएन मजूमदार का वर्क, तो जो जिसको हम पहले कहते थे कि द्रौपदी के ज्यादा पति थे, 5 पति थे, उस तरह से वहां पे भी पॉलीएंड्री, इवन लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा एक समय में, इस तरह की व्यवस्था थी। तो आज की डेट में और बहुत सारे आदिवासियों में, बहुत सारे और जो वर्ग हैं, ग्रुप हैं, उनमें कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो हम कहते नहीं है, और हम उनको गलत भी कहते हैं, लेकिन हम गलत सही नहीं कह सकते हैं। हो सकता है वो उस समय की मांग हो, उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो क्योंकि जो हम फॉलो करते हैं वही सही है, और जो दूसरा करता है वो गलत है। ऐसी सोच से अगर हम जाएं तो वो ऐसा कम से कम हम इस विषय में तो हमें इसके प्रति एक तरह से सजग किया जाता है कि ऐसा नहीं है। तो लोगों के, क्योंकि संवेदनशीलता होना बहुत जरूरी है। समाजशास्त्र विषय डायरेक्टली लोगों से डील करता है। इट्स अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, पीपल, इंस्टीट्यूशंस, देयर रिलेशनशिप्स। तो जब हम वही चीज नहीं, जैसे एक वर्ड है जेंडर सेंसिटाइजेशन, बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाएं और पुरुष का जो अंतर है उसकी तरफ से संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स या नीतियां, योजनाएं सरकार बनाती है, बहुत बार ऐसे बनाती है कि उसमें महिलाओं को नुकसान हो जाता है, या उनकी संवेदनशीलता का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे मेकिंग ऑफ वुमेन सेपरेट टॉयलेट्स, कई बार ऐसा नहीं बनाते वो, लेकिन उसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं कि महिलाओं को उन निर्णय लेने की प्रणालियों में, जैसे पंचायती राज में अभी है, उस तरह से बहुत ज्यादा आवश्यक है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पंचायत हो। तो और एक और चीज है जिसको हम लोग एथिक्स कहते हैं आमतौर पे, एथिकल, जिसको हम नैतिकता भी कह सकते हैं, मूल्य, नैतिकता, मूल्य मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन नैतिकता की तरह उस चीज का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं हो, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं कुछ गांव में यहाँ पे काम करती हूँ, जो वो गांव जो है वो एलओसी पर है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लगभग आप समझिए कि हम वहाँ खड़े होते हैं, उससे हमारा पाकिस्तान बिल्कुल सामने दिखता है, आधा किलोमीटर भी नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कहेंगे या लोग हमें बताते हैं, उनके ऊपर आएगा। तो एथिक्स ऑफ प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं कि कौन सी बात बतानी है, और इन्फॉर्म चॉइसेस दीजिए लोगों को। उसी तरह से जब आप काउंसलिंग करते हैं तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब जिसको हम ट्रांसपेरेंसी भी कहें या जो भी कहें, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी, इसके अलावा ये हो गया फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस। उसके अलावा जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, जिसके पेपर्स आप पढ़ते हैं, बहुत मतलब ग्रेजुएशन पे भी और पीजी पे भी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव में ज्यादा स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं, और बाकी इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन वगैरह हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं भी आगे चल के आपको बहुत तरह के सर्वेज हैं, मार्केट सर्वेज हैं, अदरवाइज मैं अभी आऊंगी उस पर, वो उस वहां पर आप को एक संभावना है आपके करियर की। तो मुझे लगता है कि एक नॉलेज बेस, जो ज्ञान है, और अपने सब्जेक्ट की अच्छी समझ और पकड़, जैसे थ्योरीज और मेथड्स जो सोशियोलॉजी में हम कहते हैं, मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में उसका एक अच्छा होना बहुत जरूरी है। और जब आप किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी आप व्यवसाय को चुने आगे चल के, या चुनना चाहें, तो सबसे पहले आपको, मुझे ये लगता है कि उसकी, उस विषय की जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उस पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। खाली पास होने के लिए आप पास हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के जहाँ कंपटीशन आता है वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो अपने विषय को अच्छी तरह से समझना, उस पर अच्छी पकड़ होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और आपके विषय जो है वो आपके इंटरेस्ट का, आपकी रुचि का होना चाहिए, और आपकी एबिलिटी, काबिलियत, क्षमता और योग्यता के हिसाब से भी होना चाहिए।
कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हम, आपने देखा होगा आज तो नहीं लेकिन जिसमें हमें मन नहीं लगता, जो हमें अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल रिसर्च की तरह है कि वो टॉपिक हम लें जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें रुचि आती है। हालांकि मुझे पता है कि मार्केट के अपने कंपल्शंस हैं, लेकिन एक अपनी रुचि, अपना नॉलेज, अपनी ज्ञान और अपनी योग्यता, क्योंकि बहुत बार हम लोग एक ऐसा ले लेते हैं, कहते हैं कि नहीं यार ये तो हम नहीं कर सकते। अब कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं, या कुछ डेमोग्राफी में अच्छे हैं, कुछ और विषय में अच्छे हैं, तो वो ये देख लें कि कौन सी चीज ऐसी है जिसमें जो उनकी स्ट्रेंथ है। या अगर आपका इंटरेस्ट भी है पर आपका बहुत मजबूत नहीं है, तो आप निरंतर प्रयास से या प्रैक्टिस से उसको अच्छा कर सकते हैं। So your abilities also matter as well as your interest and your strength, and your knowledge. तो और इसके साथ ये है कि हमको थोड़ा सा, मैं ये तो खैर पेरेंट्स को कहने की बात है, टीचर्स को भी ना करो, ऐसा लो वैसा लो। आज बहुत बहुत सारे जॉब्स खुल गए, मार्केट ओपन हो गए। अब खासकर आप मीडिया और जर्नलिज्म में देखें कितने बच्चे जुड़े और कितना अच्छा बोलते हैं, जो कि ये चीजें नहीं थी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं। उसके अनुसार अपने को योग्य बनाना है ना, वो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। और जो भी काम बच्चा करना चाहे, अपनी इच्छा से करना चाहे, और इसलिए आप भी ऐसा मत चुनिए क्योंकि आप ये करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम वो ही करो क्योंकि समाज उसको ज्यादा मान्यता देता है। आप वही करें जो सच में आपका दिल करता है और आपको उसमें अच्छा लगता है। भले ही वो समाज की दृष्टि में शायद उतना ऊंचा नहीं हो, हर कोई यही चाहे कि भाई कोई प्रोफेसर ही बने या डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने, ऐसा तरह की सुविधाएं हैं। आप कुछ भी देखना चाहें तो तुरंत मिल जाती है। हम लोग के टाइम में जब स्टूडेंट्स थे तब हम लोग को कितना खोजना पड़ता था, ये हम लोग को ही पता है। तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगता था। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जैसे सोशियोलॉजी विषय है, सोशल साइंसेज है, कोई भी विषय हो, तो एक सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन होता है हमारे सामने, वो सिंपल एकेडमिक होता है। के बाद या एमएससी के बाद हम लोग पीएचडी और एमफिल ये सब करते हैं, और इसमें हम जैसे लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर आगे चल के प्रोफेसर वगैरह बनते हैं। तो ये तो क्लियर कट एक एकेडमिक से डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक है। जिसको वाकई में रुचि है हायर एजुकेशन में, रिसर्च में और उस विषय को पढ़ने में, तो वो आगे जाए। ये आप शायद महाराष्ट्र में भी होते होंगे कि 11th और 12th में सोशियोलॉजी है यहाँ काफी सारी जगहों पे। और मेरे अपने स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग लेक्चरर्स हैं, तो वो बहुत मतलब जब उन्होंने यूनिवर्सिटी से किया, एमए किया और फिर आगे कुछ कुछ ने पीएचडी वगैरह भी की, तो वो बहुत खुश हुए कि मतलब उनको ये जॉब कंपेयर टू अदर्स उनको थोड़ा आसानी से मिला। और क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, जो हम पढ़ाते हैं अपने विषय, वो बहुत ज्यादा यूजीसी से मिलता जुलता है। यूजीसी जो नेट बच्चे क्वालिफाई करते हैं, द बेसिक लाइक क्वालिफिकेशन टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारा ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यूजीसी का सिलेबस है उसके लिए। और इसलिए हमारे यहाँ शायद ही कोई रिसर्च स्कॉलर ऐसा है जो जेआरएफ नहीं है। तो ये क्योंकि बहुत टीचर्स मेहनत करते हैं लेकिन सिलेबस के हिसाब से। अब रिसेंटली वो सिलेबस बदला। जब वो बदला तो हम लोगों ने भी अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग बुला के सिलेबस को चेंज किया। बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाए। अब बच्चा जेआरएफ लेता है, जेआरएफ 30-35 हजार, 40 हजार, फिर और ज्यादा मतलब जो कि पढ़ने के लिए आपको पैसा मिलता है, जिससे वो लैपटॉप खरीद लें, ट्रैवल करें। मैं तो कहती हूँ कि कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, उठाते हैं। तो ये टीचर्स का दायित्व भी बहुत ज्यादा है और जहाँ पढ़ते हैं उनका भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक विषय जो एकेडमिक्स में, आप हायर एजुकेशन में तब जाइए वाकई में सच में आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखाई में और आप एक सीरियस थिंकर हैं तो।
वरना रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी तो शायद मैं इतना नहीं इस पे बोल पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि आप जिन पे ग्रेजुएशन के बाद या कभी कभी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी, मास्टर्स के बाद भी आप उसको स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, महाराष्ट्र में भी, जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, क्रिमिनोलॉजी है जैसे कि, तो हम लोग जो एक पेपर पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है एमए में, कम से कम वो है सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, है ना। तो उससे आप कोई जेलर, कोई कोर्ट में आपको देखिए ना, लोगों को डील करना है, लोगों को कुछ साइकोलॉजी का भी इसमें रोल है, उस विषय का भी एक महत्व है, लेकिन सोशियोलॉजी का बहुत ज्यादा है इसमें। और बहुत रिसेंटली मेरे दो स्टूडेंट्स, एक एमए, एक पीएचडी किया है, एक अभी कर रहे हैं, दोनों ने मुझे बताया अपने तरह से अलग अलग कि भाई उनको कोर्ट में नौकरी, मैम वहां पे एक प्रोविजन था। तो जो हमारी एक समझ है वो हमारे स्टूडेंट से ही आती है कि भाई बच्चों को कहाँ कहाँ नौकरियां मिल रही हैं। तो देन आई रियलाइज दैट क्रिमिनोलॉजी इज अ वेरी गुड एरिया, और बहुत सारी जगह हैं हमारे देश में, और महाराष्ट्र में भी जरूर होंगी, आपको शायद मुझसे ज्यादा पता हो। जैसे बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज है, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, और उस तरह से एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, या इंदौर में है क्रिमिनोलॉजी का इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा, इवन कर्नाटका में काफी सारे हैं, बैंगलोर में है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इस तरह से क्रिमिनोलॉजी में कोई आप, हालांकि मास्टर्स से डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीएचडी सब कुछ है उसमें, तो प्रेफरेंस देते हैं। तो एक क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन सा हो जाता है। जैसे एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट था फॉर्सनिक साइंसेस का, तो उसमें हमारे कुलीग थे, तो बात कर रहे थे, अब तो वो यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, वो कह रहे थे कि मैंने अपना जो करियर है वहां से शुरू किया था। तो हमने कहा फॉर्सनिक साइंस में वो जो फिंगरप्रिंट्स और इस तरह की चीजें लेते हैं, तो हमने कहा वहां कहाँ चले गए। वो बोले नहीं, वहां पे भी स्कोप है। तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा हमको डिस्कवर करने की बात है, ढूंढने की बात है। और आजकल जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ एक बार डालेंगे गूगल में तो वो चीजें आ जाएंगी। और इसी तरह से ह्यूमन राइट्स को लेके है, और पुलिस, क्रिमिनल लॉज हैं, जो क्राइम सेल्स हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जो कि सिर्फ क्रिमिनोलॉजी से, और हमारे बच्चे भी कुछ खासकर प्रिजन को लेके, इनमेट्स को लेके इस पे काम कर रहे हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बहुत सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हम ज्यादातर प्रिमिटिव ट्राइब्स और इनकी बात करते हैं, और अदर ट्राइबल ग्रुप्स, बैकवर्ड क्लासेस। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या कोलकाता में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं लगभग हर राज्य में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। तो आपका जो ज्ञान है उनके बारे में, और जैसे मैंने खुद पीएचडी अपनी ट्राइबल्स पे ही की है, तो मुझे एक बार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आया था जॉब, वो बहुत पहले की बात है। बट फिर मेरा एकेडमिक्स में आ गई तो मैं उधर नहीं गई, लेकिन मुझे लगा था कि वो शायद मुझे इंटरेस्ट वाइज वो ज्यादा अच्छा लग रहा था उस समय। पर अब वही हो गया कि कभी कभी चॉइस भी आपको करनी पड़ती है, तो मुझे एकेडमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहा, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई। लेकिन इसका भी बहुत स्कोप है। और जैसे पॉपुलेशन स्टडीज एक और एरिया है, डेमोग्राफी और हेल्थ। और जैसे मुंबई में है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, तो वहाँ टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च है पॉपुलेशन स्टडीज में। और आपने सुना होगा एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस, तो वो बहुत एक तरह का डेमोग्राफी पर, हेल्थ पर बहुत बड़ा सर्वे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है वो। और हमें हमेशा जैसे सेंसस ऑफ इंडिया है उसी तरह से इस तरह का है। तो अब ये उनके सर्वेज ये लोग कौन करेंगे? ये करेंगे वही बच्चे जो मेथोडोलॉजी में ट्रेंड हैं, या जिनको इनके बारे में पता है उस तरह से। तो मैं ये भी कहूंगी कि जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि मैम हम यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे वो हेल्थ सोशल वर्कर हैं।
तो हमने पूछा था उनसे कि आप लोग क्या करते हैं, तो वो कह रहे थे कि पेशेंट्स आते हैं, किस तरह से उनको डील करना है। तो अच्छा, हमने कहा कि तुम वहाँ मेडिकल कॉलेज में चले गए। जो कि हमने सोचा नहीं था कि सोशियोलॉजी पढ़ के कोई मेडिकल कॉलेज और इस तरह से जाएगा। तो जो सर्वेज वगैरह हैं, जो डेटा कलेक्ट है, उसमें तो करना ही है, लेकिन इस तरह से ये सरकारी नौकरी थी। और ऐसे भी काफी सारे लोग हैं स्टूडेंट्स जो इस तरह के जॉब में हैं। अब अलग डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अगर आप देखें तो जैसे मुझे कम से कम इतना ही तो पता है कि हमने तो खैर बहुत पहले किया था। दो हमारे क्लासमेट्स थे, जेएनयू से किया था, तो दो हमारे क्लासमेट थे। उनमें से एक अभी एनसीईआरटी है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टीचिंग दिल्ली में है। और नीपा जो यूनिवर्सिटी बन गई है, वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो वहां पे प्रोफेसर है, और हम पूछ रहे थे कि तुम नीपा में पहुंच गए, या एनसीईआरटी जो 11-12 की बुक्स लिखते हैं, आप सबको पता होगा। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी वो बुक्स हैं। अगर खासकर आप 11वीं 12वीं पढ़ी, बाद में भी एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी होती है। तो ये जो कौन लिखता है, क्या करता है, तो ये आप और हम जैसे ही लोगों में से लोग होते हैं जो से उनको वहां नौकरी मिली। तो उसी तरह से अर्बन है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है, मार्केटिंग है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं खासकर दिल्ली में मैंने देखा, जहाँ पे लोग आगे चल के उनसे जुड़ते हैं और नौकरी करते हैं। पॉलिसी, जैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी है। मेरे ख्याल से समाजशास्त्र कुछ ऐसा विषय है जिसमें किनशिप हो गया, ट्राइब सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो गई, या फिर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हुआ, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोशियोलॉजी हुई। शायद हमारे लिए एक थोड़ा सा अच्छा है कि हम लोग इस तरह से एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि हेलो। तो मैं बस थोड़ा सा और टाइम लूंगी, 10 मिनट, अगर दैट इज फाइन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जस्ट 10 मिनट्स और मे बी 12 मिनट। तो जैसे कि पॉलिसी, जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, तो पॉलिसी एनालिस्ट जैसे इम्पा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी काफी लोग जाते हैं जो सोशियोलॉजी पढ़े होते हैं, या उनका थोड़ा स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन हो जाता है। और एक बहुत हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, जो कि हम लोग अभी भी उसको बेस मानते हैं, दैट इज रूरल सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। और क्योंकि हमें पता है कि जो 50s और 60s का जो दशक रहा है हमारे देश में, उस समय बहुत इस चीज का महत्व था, क्योंकि भारत एक ग्रामीण देश माना जाता था, अभी भी काफी हद तक है, 76% या कुछ इस तरह से। लेकिन उस समय बहुत ज्यादा था, और बहुत लोग गांव में रहते थे, तो गांव का विकास कैसे हो, इस पे सब जोर था। और सोशियोलॉजी में तो बहुत ज्यादा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म्स, इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक। और अब और एग्रीकल्चर, फार्मर का मूवमेंट चल रहा था नॉर्थ इंडिया में कम से कम। और महाराष्ट्र का मुझे पता है बहुत ज्यादा फार्मर्स की अपनी एक तरह से प्रॉब्लम है। शेतकारी संगठन मूवमेंट रहा, शरद जोशी, डीएन धनागरे का वर्क जो है फार्मर्स सुसाइड पे है, जो कि हम सोशियोलॉजी में इतना कुछ पढ़ते हैं महाराष्ट्र से। मतलब की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं रही हैं, नई तरह की उनकी समस्याएं आ गई। तो कहने का मतलब है रूरल डेवलपमेंट जो है, जो मुझे तो लगता है कि सरकारों को सोशियोलॉजिस्ट हर मिनिस्ट्री में रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, समाज की, डाइवर्सिटी की, और एक संवेदनशीलता लोगों की तरफ रहती है। हम लोग लोगों को ऐसे नहीं ट्रीट करते जैसे कि शायद डॉक्टर, मतलब एकदम से किसी को भी करें, हमारे लिए नहीं की बात करते, वो इंस्टीट्यूट हमारे माइंड में आता है। राज्य भी है जम्मू कश्मीर में, तो एक इसका बहुत ज्यादा महत्व रहा है, और मेरे ख्याल से हर एक राज्य में रहा होगा। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा महाराष्ट्र के बारे में बहुत, अगर आप ये कहें कि स्पेसिफिक चीजें पता हैं,
इतनी ज्यादा नहीं पता, शायद महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ, और जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें समानताएं हैं। एक डिपार्टमेंट जो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रचलित है और बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है समाजशास्त्र से विशेष रूप से, वो है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। और इसमें हमारे बहुत हैं, एज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, एज पैरा लीगल पर्सनल लॉयर, हेल्थ सोशल वर्कर, जैसे मैंने कहा था। इवन कुछ हमारे स्टूडेंट, हालांकि थोड़ा सा मैंने उनसे कहा कि तुम, कुछ 2 लड़कियां हैं जिन्होंने पीएचडी अभी की है, और वो हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर जो होता है, तो लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन शायद ग्रेजुएशन ही होती है या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने उनसे कहा कि तुम पीएचडी करके तुम वहां सुपरवाइजर लग गए, तो वो कह रही मेरा जॉब नहीं था, लेकिन हम उसको ढूंढ रहे हैं कि और कुछ मिल जाए। तो सोशल वेलफेयर में सब फर्स्ट प्रेफरेंस लगभग आप समझ लीजिए सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी को जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, क्योंकि इसमें होता है कि पेंशन्स देते हैं, एजेड लोगों को देते हैं, विडोज को देते हैं जो विधवाएं हैं, और स्कॉलरशिप्स दी जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, लोगों से डायरेक्टली जुड़ा होना। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में जो है नौकरियां आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकार की तरफ से, ये इनको सबको देखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो है ही है, ट्राइबल अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, और शायद ही सोशियोलॉजी का कोई ऐसा मतलब होता है जहाँ पे जेंडर एंड डेवलपमेंट नहीं बताया जाता। तो महिलाओं की स्थिति, बच्चों की और यूथ की, इसको लेके भी हमारे जो पेपर्स हैं वो होते हैं, जो अपने आप में एक स्कोप है। और इसके बाद मैं ये कहूंगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासन में है, जैसे हम कहते हैं आईएएस, यूपीएससी की है, या हर राज्य में अपनी होती है। जैसे आपकी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो जरूर होगा, क्योंकि हर स्टेट में होता है, और वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं स्टेट लेवल का। तो उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो या तहसीलदार, और जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, और आगे चल के बहुत डायरेक्टर वगैरह बनते हैं, सेक्रेटरी। तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण विषय है समाजशास्त्र। मुझे एक महाराष्ट्र के, क्योंकि हमारे जो सोशियोलॉजी है, महाराष्ट्र की भी अपनी एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया लेवल पे है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक प्रोफेसर मुझे बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जो आपके एग्जाम्स होते हैं स्टेट सर्विसेज के, उसमें जनरल स्टडीज वगैरह जो भी पेपर्स होते हैं, उसमें सोशियोलॉजी का पोर्शन लगभग 25% आता है, और अगर यूपीएससी है तो 30%। तो 25 से 30% अगर आपका एक समझ आपके विषय से आ रही है, मतलब सोशियोलॉजी पढ़ के आप उतना 25%, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा विषय है, अच्छा विषय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और सच में अगर आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी कोचिंग भी ले सकते हैं, लेकिन स्वयं आप मेहनत करें, मुझे लगता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और सब कुछ तो है, नेट है, ये है, गूगल है, इतना सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं बहुत कुछ, सब लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड सब्जेक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और उसके बाद लास्ट में मैं ये कहूंगी कि जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की मैंने बात की, एनजीओज और यूनाइटेड नेशंस के, तो दिल्ली में तो मैंने ऐसे देखा था, जैसे यूनिफेम है जो कि यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर विमेन, या यूएनडीपी है, और उस तरह के जो संस्थाएं वो में इस विषय के बहुत लोग जाते हैं। और जैसे एनजीओ हेल्प एज इंडिया, रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑक्सफैम वगैरह। और मैंने ऐसे ही नेट में देखा था, तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे एनजीओज हैं, लोग अपना एनजीओ खोल भी सकते हैं और प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। आईसीएसएसआर है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, वो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, वो देती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी, यूजीसी भी देती है, पर वो तो खैर टीचर्स के लिए, बट बहुत जगहों से आपको वो सब मिल सकता है। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि एनजीओज जो हैं वो कई बार बहुत छोटे मोटे होते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े काम कर सकते
तो इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक्स के अलावा गवर्नमेंट बॉडीज हैं, अदरवाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, एनजीओज हैं। तो मुझे लगता है यही सारा जो उसका स्कोप है एक तरह से, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सोशियोलॉजी का स्कोप बताना है और मैं ऐसे कोई टेक्निकल या उसमें काउंसलर एज एक्सपर्ट वो मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ। तो वो ही मैं आपको बता, और जो मैंने देखा, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने बताया। लेकिन मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि दिस इज द टाइम फॉर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे एनवायरनमेंट का इशू है, वी हैव अ पेपर ऑन सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन मुझे पता है कि एनवायरनमेंट का इशू जो है वो साइंसेस के विभिन्न जो विषय हैं वो भी पढ़ाते हैं। तो अब आप जेंडर की बात करें या हेल्थ की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज सोशियोलॉजी में बहुत पढ़ाने लगे, जबकि आपको पता है कि वो ज्योग्राफी का भी विषय है, साइंसेस का भी विषय है। तो इतना इंटरडिसिप्लिनरी, इतना मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया है कि आप जो है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी समझ है तो आप उस को समझ सकते हो, और जो भी विषय या जो भी क्षेत्र विशेष रूप से आपको पसंद है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है और आप में काबिलियत है उसको समझने की या इंटरेस्ट की, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे स्कोप हैं, सब कुछ खुला हुआ है। थोड़ा ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो मैं नहीं कवर कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर कुछ गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जरूर होगा, स्कॉलरशिप होगी, या कुछ लोग साथ में थोड़ा थोड़ा काम करके सर्वे। अभी मुझे एक सोशियोलॉजी के टीचर बता रहे थे कि वो कुछ मार्केट सर्वेज भी कराते हैं और बच्चों को कुछ वो भी देते हैं, एक मतलब एक क्वेश्चनर टाइप ऐसे, या शेड्यूल होगा या क्वेश्चनर ये भरवाने के लिए, और उसको बच्चों को पैसे देते हो, दे आर एबल टू अर्न गुड मनी। तो ठीक ठाक बच्चे उसमें कमा लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी होता है। तो इतना कुछ है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, मतलब सरकार की इतनी संस्थाएं हैं। आपको ये लगता है पूरा सेंसस का रिकॉर्ड है, हेल्थ सर्वेज हैं, मार्केटिंग सर्वेज हैं, तो लोग कहाँ से आएंगे? लोग आप में से ही आएंगे, आप ही उनके जाके ज्वाइन करेंगे। तो अपने को एक खोलना, अपना एक एक्सपोजर है जो मुझे लगता है कि आज के जमाने में बच्चों को मिलता है। मीडिया और जर्नलिज्म भी बहुत ज्यादा अच्छा विषय है। तो ये सब आप देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया भी हम लोग पढ़ते हैं, कराते हैं रिसर्च। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आज के समय में यहाँ पे हैं, और आपके पास एक तरह से मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है इन सबको देखने की और समझने की। और अगर आप अपनी कोशिश जारी रखें तो जरूर आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद मैम, आपने जो अलग अलग क्षेत्र में हमें जानकारी दी। हमारे जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं, भारत देश ग्रामीण विभागों से जुड़ा हुआ देश है। उस क्षेत्र में क्या अलग अलग क्षेत्र जो स्टूडेंट सोशल चुनते हैं, उससे करियर जो विद्यार्थी करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन एक्चुअली समाजशास्त्रीय विद्यार्थी जब स्पेशलाइज से चॉइस करते हैं तब उनको समझ में नहीं आता कि क्या करे आगे चलकर, सोशियोलॉजी किस मुकाम पर अपने को ले जाएगा। मगर ऐसा क्षेत्र है जो अपने अलग अलग क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया से, हेल्थ सर्वे, लेबर सर्वे, मैम मेरी तरफ से कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फील्ड ऑफिसर होता है। लॉ कॉलेज में भी अपनी पोस्ट रहती है। हर तालुका लेवल पे एक ऑफिसर रहता है गवर्नमेंट का, फील्ड ऑफिसर। उसे पॉपुलेशन सर्वे है, डाटा कनेक्शन है, या अलग अलग सर्वे के क्षेत्र में जो अपने समाजशास्त्र स्टूडेंट के गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, ये अलग अलग जो है माध्यम से जो महत्वता आपने जो बताई है, वो महत्वता हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी तरह समझाया। धन्यवाद देता हूँ मैम आपको। अब इस कार्यक्रम के प्रस्तुत जो कार्यक्रम के अध्यक्षीय समापन हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जी जाधव सर को मैं आमंत्रित करता हूँ।
धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू मैडम। करियर काउंसलिंग फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। इसलिए प्रमुख अतिथि डॉक्टर अब्बा चौहान, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फ्रॉम जम्मू। इसी दौरान उपस्थित हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर VS सिंह फ्रॉम केमिस्ट्री, वाइस प्रिंसिपल SN असोले फ्रॉम कॉमर्स, वाइस प्रिंसिपल DV थोरे फ्रॉम आर्ट्स and coordinator from आर्ट्स Dr. DV Dogre, and Dr. PD Patil sir, Dr. DV Padole sir, all the students और सभी प्राध्यापक टीचर्स। मैडम, मुझे लगता है कि पेंडेमिक का बहुत सारा कोरोना से हानि हो गई, नुकसान हो गए, लेकिन इससे एक बात जो सामने आई वो है कि इसी जो दौरान साल 1.5 साल में 1.5 year and 1 year or 2 years लास्ट में हम बहुत दूर दूर से आदमी को जुड़े हैं ऑनलाइन माध्यम से। इससे पहले ऑनलाइन माध्यम का इतना उपयोग कभी किया नहीं गया था, बल्कि फैसिलिटी सब थी सबके पास, लेकिन आप जैसे जम्मू से यहाँ हमसे जुड़े और आपकी बातें हमें सुनने मिली, ये हमारा सौभाग्य है। ये सभी ऑनलाइन माध्यम से हो सका, नहीं तो आप कब आ सकते थे महाराष्ट्र में, कहाँ उमरगा और हमारे कॉलेज पे कई विजिट देते थे, क्योंकि मैं जम्मू आया था तो मुझे आने के लिए कम से कम 36 आवर लगते थे ट्रेन से। एरोप्लेन से बोले तो यहाँ से दिल्ली आना, दिल्ली से सीधा जम्मू है। लेकिन अब बातें बदल रही है, अब ऑनलाइन का जब अभी यूनिवर्सिटी हमारे जो महाराष्ट्र के सभी ने ऑफलाइन एग्जाम लेने का, ऑफलाइन टीचिंग करने का उन्होंने शुरुआत की है, और उन्होंने हमारे जो सब यानी कि क्या बोलते शिक्षा उनके वाइस चांसलर थे, उनके साथ मीटिंग लेके अब से जो एग्जाम आने वाले महाराष्ट्र में सब ऑफलाइन होने वाली है। इसका मतलब है कि अब ऑफलाइन पीरियड शुरू होने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले हम ऑनलाइन से जितना चाहे हो सके उतना हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो स्टाफ है, उनका जो रिलेशंस है बाहर से लोगों का, उसका हमने फायदा करके ले लिया, उनसे हमें बेनिफिट मिल रहा, और इसी एक वजह से हम भी आज से आप भी हमसे जुड़ गए, ये हम सौभाग्य समझते हैं। मैडम, मुझे लगता है कि सोशल साइंस में एक पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अहम है, क्योंकि सोशियोलॉजी पूरा समाज का एक आईना है, एक दर्पण है। पूरा समाज का वो स्टडी करते हैं, समाज कहाँ से शुरू हुआ, लोग समाज कैसे स्थापित कर दे, समाज के नियम कानून कैसे रहते, उनकी भावनाएं क्या रहती है, इससे जो पूरा स्टडी जो सोशल साइंस में करते हैं। वैसा तो आई एम फ्रॉम फिजिक्स, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। जब भी कभी मैं सोशियोलॉजी का बुक पढ़ता हूँ तो उन्होंने जैसा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो लिखा रहता है, उनके जो डिफिनेशंस है, उनके जो नियम है, कानून है, वो बहुत सटीक शब्दों में वो लिखते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो पूरा उसका अर्थ हमारे को समझ में आता है। तो सोशल साइंस मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जब भी बच्चा पार्टिसिपेट होता है या स्टडी करने लगता है या एडमिशन लेता है, तो उसमें जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसमें सोशल साइंस का उन्हें बिल्कुल अभ्यास करना चाहिए। और सोशल साइंस का जो उसका जो अभ्यास जो हो जाएगा तो उसका उस लाइफ में जब वो कहीं सर्विस जाके करेगा, कहीं और कुछ बिजनेस डालेगा कहाँ भी, तो उसे उसका एक अलग अंडरस्टैंडिंग रहती है, और उस अंडरस्टैंडिंग का उसके लाइफ में बहुत भाव रहेगा, वो अच्छी तरह से उसका जो काम है वो निभाएगा। और सोशल एक सोसाइटी का मैंने देखा है, मैं एक 4-5 साल के पहले मैं लेह लद्दाख आया था मैडम। ऐसा जम्मू आया था 2 बार, एक बार अमरनाथ ही गया था, श्रीनगर 2 बार रुका था,
और उसके बाद में एक बार लेह में भी गया था। लेह में भी रुका था, पेंगोंग त्सो लेक, सियाचिन ग्लेशियर या कारगिल, ये सभी पूर्व पश्चिम, पूर्व उत्तर और दक्षिण के तरफ मैं दो दिन घुमा था और रहा भी था। लेकिन मैंने देखा है कि रेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें का जो जीने का जो तरीका है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। अब जब पहाड़ी इलाके में मैं गया था, मैंने देखा तो उनका जो सामाजिक जीने का जो स्तर है या उनकी सोच है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि आदमी वो ज्यादा नहीं सोचता कि ये चाहिए वो चाहिए, जो भी है उससे गुजारा करता है और वो आनंदी यानी कि सुखी जीवन जी रहा है उधर। वैसा तो मैंने कुछ बौद्ध मॉनेस्ट्री देखी है, उसको विजिट किया है। वो उसमें मैंने देखा है कि उधर के लोग जो लाइफ के लिए जितना सेक्रीफाइस करते हैं, तो रेस्ट ऑफ में ऐसा करते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा सा संदेह है मैडम। वो बहुत अच्छे, बहुत दिल के अच्छे लोग वहाँ रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी इलाका है जैसा भी है, वहाँ पे थोड़ा सा जो जमीन है वो उतनी नहीं, वो उत्पन्न ज्यादा नहीं दे सकती है, वो उपजाऊ उतनी जमीन नहीं है फिर भी। लेकिन जो भी वहाँ टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही एसेंशियल है, टूरिज्म है। और जो भी वहाँ का जो रूरल एरिया में गुजारा करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम संसाधनों में भी बहुत अच्छी तरह से लोग रहते हैं। रही बात अपने जो अब आगे जो चल के जो गुजारा करना है, जो बच्चे अपने को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए जो आपने जो बताए कि कहाँ का अपॉर्चुनिटीज है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। मैंने वहाँ पहाड़ी इलाके में आके जब मैंने देखा है, तो बहुत सारे जो बच्चे वहाँ के, तो वहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया में चले आते हैं सर्विस के, और वहाँ वो आराम से कमा लेते हैं। अभी फिर से वो अपने गांव भी जाते हैं, वहाँ से उनका जो है वो भी मेंटेन करते हैं। वो घर वाले हो या माँ बाप हो या पूरा परिवार हो, वो भी वो मेंटेन करते हैं। तो ऐसा सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो पूरा यानी कि पूरा सोसाइटी का सब्जेक्ट है, इसलिए उसका हर एरिया में उसका उपयोग होता ही है। आपने बोला कि कोर्ट में पोस्ट है, एनजीओ जब सर्वे करती है डिफरेंट सोसाइटी में, तो सर्वे करने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका थोड़ा तो सोसाइटी का सोशियोलॉजी का जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, और वो स्टूडेंट अच्छा सर्वे कर सकते हैं, वो एनजीओ में भी अच्छे काम कर सकते हैं। वैसा मेडिकल हेल्थ में तो हमें पता है कि बहुत सारी बीमारियां अब आ रही है, आदमी डिस्टर्ब होता है, उसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग के लिए भी मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, वहाँ भी पोस्ट उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ भी आप बच्चे काम कर सकते हैं। और दूसरा मेन मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी डिफरेंट पोस्ट निकालती है, एमपीएससी बोलते हैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट में वो एक कमीशन होता है जो उधर का लोकल का यानी कि स्टेट के लिए जो भी उनको जो लगता है स्टाफ, वो स्टाफ के लिए वो लोकल में जो भर्ती किया जाता है अदर देन यूपीएससी, वहाँ में जिनका जिनका सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट होगा वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और करेंगे। इसलिए मुझे लगता है सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या टोटल जो सोशल सब्जेक्ट्स है, उस सोशल सब्जेक्ट्स का मानवीय जीवन में एक बहुत अहम प्रभाव रहा है। लोग सोचते हैं कि साइंस ही ऐसी है, साइंस से वो बताता है, साइंस ये करता है, ऐसी बात नहीं है। साइंस सिर्फ टेक्नोलॉजी उपलब्ध किया करता है, लेकिन कैसा जीना क्या रहता है, किस तरीके से जीना, उसके कानून नियम क्या चाहिए, सभी का स्टडी सोशल साइंस में होता है, सब सोशल साइंस में होता है। इसलिए जिंदगी ही सोशल साइंस ऐसे मुझे लगती है। और आपने बहुत सारे उसके विचार हमारे सामने रखे। बिल्कुल इसका जो उपयोग है हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, हमारा स्टाफ करेंगे, अपने जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है, उसके बारे में थोड़ा सा आपने हाईलाइट किया है, उसके बारे में सोचेंगे। और सोशल साइंस के जो भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमारे सभी स्टाफ उनको क्या अपॉर्चुनिटीज है उसका वो चार्ट बताएंगे, उसके बारे में उनको जानकारी देंगे, और आपकी भी जानकारी हमें बहुत अच्छी तरह से काम आएगी, उसका हमारे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट लेंगे। और आप हमसे बहुत दूर से जुड़ी है, इसलिए मैं प्रिंसिपल के नाते से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं यह भी मेरे जो 2 शब्द है
और मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पटोले सर। पटोले सर। यस सर। हाँ, इस आभासी ऑनलाइन व्याख्यान का धन्यवाद ज्ञापन हमारे समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीडी पटेल सर करेंगे। धन्यवाद सर। एक दिवसीय ऑनलाइन माध्यम द्वारा आयोजित तथा आभासी मंच द्वारा प्रस्तुत करियर काउंसलिंग फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स इस विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया था। उसके लिए अध्यक्ष के रूप में हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम जी जादव जी प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपना मौलिक समय हमें दिया। मैं हमारे विभाग की ओर से उनका हृदयता से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इस कार्यक्रम को मौलिक रूप देने वाले हमारी स्नेही व्याख्याता डॉक्टर आभा चौहान जी प्राप्त हुई। उनकी प्रस्तुत विषय के प्रति अभिव्यक्त वाणी द्वारा हमारे छात्र छात्राओं को रोजगार के कार्य क्षेत्र में मौलिक जानकारी दी। फलस्वरूप हमारे छात्र इससे लाभान्वित हुए। इसलिए मैं उनके प्रति हृदयता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख उपस्थिति के रूप में हमारे महाविद्यालय के विज्ञान शाखा के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर विलास जी इंगले साहब, वाणिज्य शाखा के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय जी असवले सर तथा हमारे कला शाखा के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर धनाजी थोरे सर, साथ ही हमारे कला शाखा के समन्वयक डॉक्टर देवी डोबले जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनके प्रति मैं हृदयता से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित महाविद्यालय के समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, सभी अध्यापक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी, साथ ही इस कार्यक्रम के मूलाधार हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, उनके प्रति मैं सविनयता से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अंत में मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम जी जादव सर जी के आदेशानुसार यह कार्यक्रम समाप्त हुआ, ये घोषित करता हूं। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं ये घोषणा करता हूं कि आज का ये जो वर्कशॉप है यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। महाविद्यालय की ओर से सम्मानीय डॉक्टर आभा चौहान जी का शुक्रिया अदा करता हूं और एक उनसे प्रॉमिस भी लेना चाहेंगे कि जब भी अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़े, आपके ज्ञान की ज़रूरत पड़े, तो हमारे इन्विटेशन को आप स्वीकार करें और हमारा और जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ ये सहयोग बना रहे, यही अपेक्षा करता हूं और इस व्याख्यान का समापन करता हूं। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे और जरूर जुड़ेंगे आप लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।